Hello everyone, this is Amit Mishra. Today we are going to study summary of Act 3 Scene 2, that is of Tempest, the prescribed book from ISC in class 11th and 12th. In Act 3 Scene 1, we have seen that Miranda and Ferdinand, they are in love, and Miranda is eager to work for Ferdinand. Ferdinand has to do a lot of hard work which is given to him by Miranda's father, Prospero. This was a love scene. Later on, in Act 3 Scene 2, we will see the three characters which we have seen earlier, the Caliban, Tranquillo and Stefano. Caliban, Tranquillo and Stefano. What they are doing? They are drinking and wondering about the island. They are drinking and wondering about the island. But drink कर रहे हैं, island पे एक जगह से दूसरी जगह तक wander कर रहे हैं, घूम रहे हैं. And you will see here, Stefano will refer Caliban as a servant monster. What? A servant monster. A servant monster. And he will repeatedly order him to drink. उसको एक servant monster बुलाता है Stefano. When I will explain line wise, I'll tell you why. Servant monster. And repeatedly orders him to drink. उसको लगातार कह रहा है कि no, you should drink more. Caliban, who is a stupid creature, he is very happy to obey. बहुत happily obey कर रहा है वो चीजों को. He began to quarrel. The men, all three, they began to quarrel. And their quarrel is not serious. They are in jest. मजाक मजाक में लड़ाई कर रहे हैं वो लोग. Why in jest? Because they are in drunken state. They are in drunken state. We will see that Stefano now assumed the title of Lord of the Island. He considered himself as the Lord of the Island. And he promises to hang Tranquillo. He promises to hang Tranquillo if Tranquillo should mock his servant monster. Who is servant monster? Caliban. उसने कहा Tranquillo से अगर वो उसका मजाक उड़ाएगा Caliban का तो वो उसको हैंग कर देगा, उसको कैपिटल पनिशमेंट देगा, उसको डेथ पनिशमेंट देगा. Ariel is listening each and everything. He is invisible. He is listening each and everything. He enters just as Caliban is telling the men that he is subject to a tyrant or sorcerer. These are the particular lines mentioned there. Subject to a tyrant, sorcerer that by his cunning had cheated me of the island. Caliban बता रहा होता है कि वो एक सब्जेक्ट है, वहां पे एक रूल स्लेव है, एक टायरेंट का, एक सॉर्सरर का, जिसने सारा आइलैंड का जो कैप्चर कर लिया है, और जिसपे इस समय कैलिबन का, उस समय कैलिबन का रोल वहां पे रूल होना चाहिए था. अपनी कनिंग से सब कुछ चीट करके कैलिबन के हाथों से आइलैंड ले लिया है. कौन है वो पर्सन? प्रॉस्पेरो के बारे में बात कर रहा है. We will see that Ariel begins to stir up trouble. वो troubles create करता है Ariel. कैसे? He says that thou liest, you are telling a lie. Ariel invisible है. Ariel is invisible. Invisible रह के क्या कर रहा है? You are telling lie. अब उन तीनों को लगता है कि ये सब किसने बोला? ट्रैंकिलो ने. सारा ब्लेम किसके ऊपर जाता है? ट्रैंकिलो के ऊपर जाता है कि ये बोलने वाला ट्रैंकिलो है. कैलिबन कैन नॉट सी एरियल. आई टोल्ड यू, कैलिबन तो देख ही नहीं पा रहा है. एंड ही थिंक्स दैट ट्रैंकिलो सेड दिस. व्हेन ही थिंक्स दैट ट्रैंकिलो सेड दिस, ही थ्रेटन्स ट्रैंकिलो. एंड स्टीफेनो टेल्स ट्रैंकिलो नॉट टू इंटरप्ट. स्टीफेनो भी ट्रैंकिलो से कहता है कि नहीं, when he is telling his complaint, when Caliban is telling his complaint, आप उसको इंटरप्ट नहीं करोगे. आप उसको इंटरप्ट नहीं करोगे. ट्रैंक्युलो जो तो बेचारा है, उसने कुछ बोला ही नहीं.
ट्रैंक्विलो प्रोटेस्ट करता है और क्या कहता है, ही सेड नथिंग, मतलब कुछ कहा ही नहीं। ड्रंकनली दे कंटिन्यू टॉकिंग, ड्रंकन स्टेट में उनकी टॉकिंग लगातार कंटिन्यू रहती है। एंड कैलिबन टेल्स देम ऑफ हिज डिजायर टू गेट रिवेंज अगेंस्ट प्रॉस्पेरो। रिवेंज की बात हो रही, कह रहा है कि मैं प्रॉस्पेरो से रिवेंज लूंगा। एरियल कंटिन्यू टू इंटर, एरियल बार बार बोलता जा रहा है दो लास्ट। पूरे जो रिजल्ट को जो एक उसका क्या होता है बार बार एरियल के बोलने से, इनविजिबल होके बोलने से, कि स्टीफेनो हिट करता है ट्रैंक्विलो को। स्टीफेनो ट्रैंक्विलो को हिट करता है। और जब एरियल ये कर रहा है, कैलिबन एक और काम कर रहा है। कैलिबन इज हैचिंग अ प्लॉट अगेंस्ट प्रॉस्पेरो। कैलिबन प्रॉस्पेरो के अगेंस्ट एक प्लॉट हैच कर रहा है, प्रॉस्पेरो के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है, प्रॉस्पेरो को किल करने की प्लानिंग कर रहा है, प्रॉस्पेरो को मार देगा और वो कह रहा है कि स्टीफेनो को वहां का किंग बना देगा। वो ही इज सेइंग दैट, अपने फ्रेंड से वो कह रहा है कि प्रॉस्पेरो की सबसे पहले जो है उसकी प्रॉस्पेरो की मैजिक बुक आप ले लो, यू शुड टेक मैजिक बुक ऑफ प्रॉस्पेरो। जब उसके पास उसकी मैजिक बुक नहीं रहेगी तो आसानी से प्रॉस्पेरो को किल कर सकते हैं। उसकी डॉटर से मैरिज कर सकता है स्टीफेनो, जो कि वहां की उस आइलैंड की क्वीन बन जाएगी। आपको याद होगा कैलिबन पहले उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट कर चुका है मिरांडा के ऊपर। नाउ ही इज सेइंग दैट स्टीफेनो कैन टेक मिरांडा, स्टीफेनो कैन मैरी मिरांडा। He is saying that Stefano will become the king of the island and Miranda will be his queen. Tranquillo tells Stefano that he thinks this plan is good idea. Tranquillo कहता है Stefano से कि हाँ ये प्लान तो ठीक है। And Stefano apologize करता है Tranquillo से क्योंकि उसने हिट किया उसको। कैलिबन यहाँ फिर से एश्योर करता है कि प्रॉस्पेरो विल बी asleep, एक अभी सो रहा होगा, हाफ एन आवर में सो जाएगा, ठीक है, एट वो टाइम परफेक्ट होगा, एंड दैट टाइम विल बी द परफेक्ट टाइम टू किल हिम। एरियल अगेन ही स्टार्टेड प्लेइंग अ ट्यून, क्योंकि एरियल इज द स्पिरिट ऑफ एयर, वो कोई भी म्यूजिक कोई भी साउंड क्रिएट कर सकता है। वो एक एरियल प्ले करता है ट्यून अपनी फ्लूट के थ्रू, एंड टेबल ड्रम। स्टीफेनो और ट्रैंक्विलो दे आर वंडर एट दिस नॉइज। कैलिबन उनको वार्न करता है देयर इज नथिंग टू फियर, ये सारी स्ट्रेंज नॉइज हैं, हार्मलेस हैं, कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगी। According to Caliban, these voices are not going to make any harm. स्टीफेनो को क्या फील होता है? He is thinking that where I shall have my music for nothing. He is saying that I will get music for nothing. Free music will be there. Then they decided, all three decided that they will follow the music, and after that they will kill Prospero. This was the summary of this scene. In this scene, this was the summary. If you will analyze this scene, I'll tell you line-wise explanation also, but if we will analyze this scene, we will see that in this scene again there is a rich aura of magical and mysterious implications. एक ऑरा बनाया गया है मैजिकल और मिस्टीरियस इंप्लीकेशंस का। डबल्स है यहां पर, चाहे कैरेक्टर्स की बात करें, स्पीचेस की बात करें, मिरर्स दिखाई पड़ेंगे यहां पर। आपको देखोगे यहां पर देयर इज इको ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, या फिर दोनों चीजें बिल्कुल कंट्रास्ट हैं एक दूसरे से, या फिर बिल्कुल रिजेंबल कर रही हैं। वी कैन से, आप जब एनालिसिस लिखने के लिए आती है, देन यू कैन मेंशन दैट दिस इज द सीन, दिस सीन इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस सीन इज एन एग्जांपल ऑफ डबलिंग। एक डबलिंग का एग्जांपल है, हर एक जो है इको कर रहा है इसमें। एक्ट 2 सीन 1 में भी कुछ ऐसा ही देखा था हम लोगों ने। एक्ट 2 सीन 1 आप ध्यान करेंगे, कुछ ऐसी चीजें हमको इको, उसकी इको हमको यहां पर दिखाई पड़ रही है। वहां पर हमने देखा था कि कैलिबन, ट्रैंक्विलो, स्टीफेनो, दे आर वंडरिंग एमलेसली आइलैंड पे, दे आर वंडरिंग एमलेसली। स्टीफेनो मजाक उड़ाता है यहां पर, आई विल किल दिस मैन, कह रहा है कि आई विल किल दिस मैन, आई विल बी द रूलर। इस सीन में हम देखेंगे, वो कहता है कि आई विल किल दिस मैन एंड आई विल बी द रूलर ऑफ दिस आइलैंड, आई विल बी द वाइसराय, आई विल बी द वाइसराय। ठीक वैसे ही जैसे गोंजेलो जब भटक रहे थे एंटोनियो और सेबेस्टियन के साथ में एक्ट 2 सीन 1 में, ठीक वैसे यहां पर रिजेंबलेंस दिखाई पड़ रही है। जैसे वो लोग, ये लोग प्रॉस्पेरो को किल करने की बात कर रहे हैं, वैसे वो लोग एलोंसो को किल करने की बात करते हैं। गोंजेलो वहां पर सेव कर रहा था कीचो को, गोंजेलो को सबसे पहले आके एरियल ने जगाया था। वहां पर भी वैसे कुछ वॉइस थी, वैसे कुछ म्यूजिक था। पावर हंग्री सर्वेंट यहां पर स्टीफेनो, ट्रैंक्विलो हैं, दे आर
दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू किल प्रॉस्पेरो, कैलिबन उनकी हेल्प करने वाला है। पावर हंग्री आपका एंटोनियो भी था, और एलोंसो का ब्रदर सेबेस्टियन भी था। दे बोथ वर पावर हंग्री, दे बोथ वर पावर हंग्री। All four men are now essentially equated with Caliban, who is as Alonso and Antonio once were simply an usurper. Caliban की बात करें, वो सिर्फ usurper ही नहीं है, he is trying to get back his island. He is trying to get back his island. उस island को वापस लेने के लिए वो बाहर के लोगों की हेल्प ले रहा है। ये भी आप देखो कि he is trying to take the help of some outsiders. कैसे स्पीच प्रोसीड होती हैं, कैसे सारी चीजें होती हैं। हालांकि वो खुद कैलिबन वहां का नेटिव है, बट टू टेक हिज आइलैंड ही हैज टू टेक द हेल्प ऑफ अदर्स। यहां पर एंगर है, सैडनेस है, कैलिबन की यहां पर एंगर और सैडनेस दिखाई गई है। वी विल डिस्कस दिस इन लेटर while I will explain you all these things in line wise. Till that time, listen it properly and try to make notes of it. Thank you very much.